Om Shanti Puspanjali, you are not audible. Not yet. Am I audible now, sir? Yes, it is. Okay, okay. Okay, thank you so much for informing. Okay, so I'll start afresh. Okay, a very good morning to all and welcome back to today's Uthan Wellness session. There is a special announcement today that we have Jindal SAW employees with us who will be joining the Uthan Wellness session. Again, am I not audible? Audible. You're audible. Okay, okay, fine. So, JSL SAW employees will be joining us from today for the Uthan Wellness session. So, we are extending to them the wellness session for the well-being. So, this is for all the Jindal SAW employees. We would like to really welcome you on this forum of well-being and wellness sessions. So we have the host Brahma Kumaris. They have been with us here since last couple of years, and we have been part of the. They have been the part of our personal and professional growth throughout. It's been year now. Sister Sangeeta along with Sister Sapna, they host the sessions through various mental well-being topics. We would like to hand over the session to Sangeeta Didi. Didi, over to you. Shanti. Om Shanti Didi. Very good morning to all of you. And it's our, I should say, privilege of both of us. We are extending the family of personal growth of Uthan. So I would like if all the Jindals so could just switch on the videos and accept our good wishes, whoever, and if they can even raise the hands also, all those who are with us. Wonderful. Thank you very much. Because here we all are angels, and angels need to show their faces to everybody. So here every one of us looks at each other and speaks. So very warm welcome to this series. Every month we do a beautiful new series. So this month the series is self-discipline and commitment. And it's been 2 weeks, and this is the 3rd week. So it's all about discipline. And one more thing, one requisite of this, it's a play also, it's a growth, it's a conversation also, and plus it is a class also. So everyone in schools, what does happen? Koi bhi class mein jao, you get a homework, right? Without homework, have we studied? Any one of us who have studied without a homework? Any school which doesn't give any homework, so there's no one. So therefore, this is a school in your offices every day, every Tuesday. So you all would be given some homework, and that homework you have to do and bring back. So we'll see who will succeed in doing it. Just doing the homework, even if you are not following what you do, but you remembered and you practiced, that is more important. So all of you are ready for this challenge to do the homework at this age, after leaving the schools, high schools, colleges, universities. All are ready? Jindal SAW Limited? Yes? Wonderful. Good. So we'll start. So today's session, as we were doing, it is self-discipline. So self-discipline mein, we had done many things last time. Ki kya khana hai. First of all, that was the homework. I think so the homework must have been done by many. So what was the homework? Let me remember.
There were 4 points, something like that. So there were 4 points in the homework. How many have done? First is, the first point is, okay, when to wake up. That was the first point, right? The homework. And then when to sleep. That also was discussed last time. And then what to eat and what to think. But I think so, at least this was the homework. I'll just show you it. Sleeping on time, 10 p.m., waking up early, morning, which is again today repeated, and starting the day with positive emotional health. Right? This was the homework. So how many of you have really completed it? Sleeping time ठीक किया. At least 7 days, wonderful. Acha, done. One of, how many of you have tried? At least had this consciousness, I want to sleep early. 10 p.m. Wonderful. Messages, SM, chat, message, I didn't get any. Okay. And to wake up early in the morning, before 11, wonderful. 10 p.m. बहुत अच्छा. Good. Regularly you do it. Surendra bhai, you wake up at 6. Okay, good. But try 1 hour early. Very good. So waking up and sleeping time. Try both. Good. So many of you have done it. So today we'll be doing more of that kind. तो आज हम फिर करेंगे आगे का काम. तो पहले था कि waking up and sleeping and waking up. So we had discussed on that कि क्यों हमें जरूरी है. Why to sleep early, why to wake up early. And today we'll do what to eat. क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. ये भी एक तरह का डिसिप्लिन. क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. And as we have seen कि non-veg, ये food is not at all recommended health-wise. And mentally, spiritually, socially, medically, भी ये चीज नहीं. So we have discussed it many times क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन. So in that it was very clear अगर हम now what kind of mind we want, all of us. High energy food, high energy mind, always positive, always optimistic, always accepting, always having good wishes. ये mind हमें चाहिए. तो मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, ये चाहिए. You all are in the company. रिजल्ट जैसा चाहिए, हाई क्वालिटी ऑफ दैट स्टील आपको चाहिए. तो आपका मटेरियल कैसे होता है? मटेरियल उससे भी अच्छा होता है, तभी तो वैसा रिजल्ट मिलेगा. तो अगर आउटपुट मुझे माइंड इतना पावरफुल चाहिए एंड आई ईट लो एनर्जी फूड बिकॉज what I'm consuming with the food is the vibrations. Vibrations plus food is equal to the mind. So if I'm consuming that low energy food, just imagine the animal when it is going to be slaughtered. उस समय उसके जो emotions है वो सब हम जानते हैं. किसी को मारा जाने वाला है, आप आंख भी दिखाओ, उसके अंदर कितना डर हो जाता है या गुस्सा आ जाता है. और वो उसको मारा जाने वाला है, he is to be slaughtered. तो उसके अंदर उस समय what could be the emotions? Anger, revenge, and fear, all this kind of emotions. And plus until it is slaughtered, जब वो slaughter house में होता है,
if you have ever seen it, the way it has been kept in that prison में भी नेस्ट में भी अगर पिंजरा लगता है पैरेट के लिए उसमें भी जगह होती है, बट वेयर दिस एनिमल इज बीइंग स्लॉटर्ड उसके हिलने के लिए भी जगह नहीं होती है. एवरीथिंग बीइंग उसको खिलाना और उसको निकालना, जो भी एक्सक्रीटा है वो सब वहां होता है. और इतनी वो उसको भी तो अच्छा नहीं लगता है ना, उतनी गंदगी, इतना उसको मूवमेंट भी कुछ नहीं, एंड स्पेशल इंजेक्शन देके उसको फुलाया जाता है. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर डूइंग इट फॉर सो मेनी डेज, उसके बाद इट्स गोइंग टू बी स्लॉटर्ड. नाउ जस्ट इमेजिन द इमोशंस व्हाट इट इज गोइंग थ्रू. दुनिया में हम कोई हमको दर्द देता है तो हम उसको एकदम अंदर से वो निकलती है कि देखो इसने ऐसा किया है ना, इसको ऐसा मिलेगा. He is also a life, and with this condition that slaughtering done and that food is coming before me, do we expect ourselves to be very powerful, very strong, tolerance power highest, no anger, no revenge ki feeling? Do we expect that? So just this is what is we are eating. And secondly, जब उसको मतलब बरी करते हैं, मतलब एक जगह एक बहुत अच्छा एक लिखा हुआ था कि my this is not a graveyard, my body is not a graveyard. The cows had written, एक बार म्यूजियम था उसमें काउज है रिटन, माय बॉडी इज नॉट अ ग्रेवयार्ड. मतलब काउ वेजिटेरियन होती है ना, तो हम लोगों ने अपने बॉडी को क्या बना दिया, ग्रेवयार्ड. थर्डली, इफ आपके बच्चों को आजकल हम ऑर्गेनिक देना चाहते हैं, हम कोई भी इवन दवाई भी नहीं पिलाना चाहते. नाउडेज द मदर्स आर कि इसके अंदर केमिकल्स जाएगा, ये चीजें नहीं खिलानी है. और हम क्या क्या खा रहे हैं, क्यों केमिकल्स नहीं जाएगा, अभी से उसका शरीर वीक हो जाएगा. दिस काइंड ऑफ केमिकल्स वाली बॉडी, जिसको सॉर्ट ऑफ पॉइजन दिया गया, इंजेक्शंस दिया गया, ऐसी बॉडी को हम खा रहे हैं. सो वी हैव टू थिंक ओवर इट कि इज इट राइट. फोर्थ पॉइंट, एक इसमें एक बाल भी आ जाए खाने में, या कुछ मच्छर आ जाए दूध में, हम पिएंगे उस दूध को, वो खाना को खाएंगे. कॉकरोचेस आदि सब कुछ वहां वो जगह में भी हो जाए, वी वोंट लाइक इट टू डू. फॉरगेट अबाउट इन द फूड. तो हम इस तरह का भोजन कैसे खा सकते, इफ वी कैन नॉट डू दैट वे, तो हम उसका भोजन कैसे खा सकते. तो इसलिए not non-veg, not eating this kind of food, ये सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है. क्योंकि अगर ये वाला भोजन खाएंगे, हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जानवरों का अन्न खाएंगे मन कैसा बनेगा. कहते ये तो जानवर है क्या, इनको इतनी फीलिंग्स नहीं है क्या, इस तरह वो करते हैं क्या, जानवर है क्या, हम लोग जानवर है. सो हाउ डू वी डिस्काउंट द फीलिंग्स ऑफ एन एनिमल. तो अगर ऐसा भोजन खाएंगे तो हमारा मन भी कैसा बनेगा, जानवर की तरह. तो इसलिए व्हाट टू ईट, this kind of discipline is also very essential if you really want to have a complete control, complete discipline over the self, a discipline. और अब इसमें दो तीन बातें होती है. हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं खाएंगे तो या तो लोगों को बुरा लगेगा, यही सोचते होंगे ना. क्यों खाना है ऐसा, क्योंकि बुरा लगता है, अदरवाइज नहीं तो लोगों को बुरा लगता है. तो अगर लोगों के बुरे लगने के कारण मुझे खाना है,
हाउ फार एम आई जस्टिफाइंग माई सेल्फ। तो कितनी सारी चीजें उनको बुरा लगती है, खाते जाओ फिर। आर वी मोर कंसर्न फॉर देम और फॉर माई सेल्फ? हम होटल में बैठे हैं, सबके साथ बैठे हैं, बुरा लगेगा, बुरा उसको लगेगा या बुरा मेरे शरीर को लगेगा? विच इज मोर ड्यूरेबल? ये कौन सा बुरा लगना मोर ड्यूरेबल है? उनको 5 मिनट के लिए बुरा लगेगा, मेरे शरीर को, मेरे मन को कितना समय बुरा लगेगा? अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच विल डू। आई वोंट be concerned about what others feel for anything wrong which they are doing, and I want it, I need to follow, no consideration of that। तो इसलिए मुझे बुरा, उसको बुरा लगना है, लगने दो। और फिर सेकेंडली, कितनी बातें हम ऐसी करते हैं जो उनको पसंद नहीं आती, फिर भी हम करते हैं कि नहीं? हम ऐसा तो नहीं ना, एवरी टाइम वी जस्ट फॉलो वॉट एवर दे से। तो वी डू मेनी थिंग्स, जब मुझे करना है मैं करती हूँ। सो व्हाई डू वी टेक स्ट्राइड इन दिस डिसिप्लिन बाय सेइंग कि उनको बुरा लगेगा? एंड फोर्थ बात कि अगर हम सोचते भी है चलो कि उन लोग आजू बाजू सभी खा रहे हैं और हमने खाया हुआ है, हम सोचते उस समय हमको शक्ति चाहिए, बट दिस इज कॉल्ड पावरफुल कि दूसरा खा रहा है और फिर नॉट ओनली दैट, वो फिर आपको ऑफर करेंगे कि नहीं आप भी खाओ, आप मना करेंगे, फिर वो बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, आप थोड़ा बहुत वॉट एवर यू माइट से द रीजन कि ये दिस इज नॉट गुड दिस वे, मतलब थोड़ा बहुत खाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, थोड़ा और आपको लालच मिलेगा। व्हाट शुड आई डू दैट टाइम? कि चलो कोई थोड़ा खा ले, यार बहुत खाओ तो कुछ फर्क पड़ता है, इतना सा टेस्ट कर लो तो क्या फर्क पड़ता है? नाउ क्या करे, कर ले। दिस इज वेयर आई हैव टू हैव एनफोर्स माय डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन, जैसे ऑफिस का डिसिप्लिन होता है 10 o'clock आपको अटेंडेंस होता है तो डिसिप्लिन है ना, देयर इज नो रिलैक्सेशन। स्कूल्स में डिसिप्लिन है, देयर इज नो रिलैक्सेशन। सो I have to remind myself that this is the discipline, no relaxation. मुझे नहीं खाना है. And that strength, when I derive that time with that set of people which are with me every time, I can congratulate myself to be very strong. कि yes, कुछ भी हो जाए. And फिर वो मेरी strength कि देखो ये कितना पक्का रहा. और बहुत बार लोग क्या कहते हैं, क्या करें, चले जाते होटल में, नहीं खाना चाहिए, खा लेते, फिर चाहे कितनी भी बीमारी हो। यही तो प्रॉब्लम है। द हॉस्पिटल्स आर प्रॉफिटिंग बिकॉज ऑफ आवर नेचर। हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, इसलिए तो हॉस्पिटल्स में प्रॉफिट बहुत हो रहा है। तो व्हेन आई एनफोर्स दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन मी कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं खाने वाली, आई वोंट इट। मैंने आज उत्थान में लर्न किया, I agreed, and I don't want to be part of it. I won't do it. When I derive, when I give myself this strength, I will be इतनी छोटी छोटी बातों में when I enforce, when I exercise my strength, I can guarantee myself कि नहीं, बड़ी भी बात होगी ना तो मैं पास हो जाऊंगी। छोटे छोटे एग्जाम्स में क्लियर होते हैं ना तो कॉन्फिडेंस आता है। स्कूल्स में एक फर्स्ट टेस्ट पेपर होता है, सेकंड टेस्ट पेपर होता है, थर्ड होता है, कॉन्फिडेंस आता है। फिर बड़ा टेस्ट पेपर होता है ना, उसमें मोटिवेशन बना रहता है और एक क्लियर होप भी होता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस होता है, दूसरे को होप होता है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे टेस्ट पेपर। तो हम सबके बीच में रहेंगे, सब लोग कैंटीन में खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, क्या हो जाएगा? आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होगा, और जिस दिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा ना, आपको कभी भी किसी और, बिकॉज योरसेल्फ आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो इसलिए therefore दिस वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और नेक्स्ट डिसिप्लिन
हाउ टू स्पीक, हाउ टू लिसन, कन्वर्सेशन मैनर्स, क्या कैसे बोलना है और कैसे सुनना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार हम न राइट बोलते हैं या राइट तरीके से नहीं बोलते, और कभी कभी राइट तरीके से सुनते भी नहीं, होता है ना। हाउ टू स्पीक, कभी भी, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है ना, इनडिसिप्लिन है। तो कितने बार हमने एक्सपीरियंस किया कि पता नहीं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे निकल गया। बोलना नहीं चाहिए लेकिन निकल जाता है, और फिर बाद में बहुत अफसोस करते हैं। और फिर दुनिया में तो बोला हुआ है कि तीर कमान से, बात जुबान से, एक बार निकल जाती है तो फिर वापस नहीं आती। इट्स एज गुड एज पियर्सिंग द एरो। तो हम कहते हैं निकल जाता है। कोई का बोला हुआ शब्द हमको कितना टाइम लगता है भूलने में? हाउ मच टाइम विल यू टेक? हाउ मेनी टेक 5 minutes टू फॉरगेट और फॉरएवर? बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड बोला, लेकिन मुझे 5 minutes में मैं भूल गई। 5 minutes, 10 minutes, 1 hour. Yes, you all can write your power to forget time. तो फिर उसको भूलने में इतना टाइम लगता है, और हमने किसी को कुछ कह दिया, यू कैन इमेजिन। हम कहते हैं मैं तो बोल देता हूं लेकिन मैं मन में नहीं रखता हूं, मैं बोल देता हूं, और लेकिन मैंने तो बोल दिया, मेरे मन में तो नहीं रहा, लेकिन उसके मन में कितने देर तक रहा, और जितने समय तक उसके मन में रहेगा उतना वो आपको अपनी फीलिंग्स को नेगेटिव बनाने का रीजन बनाता रहेगा, इन अ वे अपना कार्मिक अकाउंट बनाता रहेगा। सो व्हाट टू स्पीक, बोलना कैसे है और फिर सुनना कैसे है बोलने में। इवन इफ लाइक जैसे हम सुनते किसी की बात सुनते, जनरली क्या होता है, सबसे प्रॉब्लम वाली पावर कौन सी है हमारे में? सुनने की शक्ति नहीं है। एक तो कट नहीं करना, बहुत जल्दी हम कट कर देते दूसरे की बातें को, क्योंकि पूरा अनुमान लगाते शायद ये बोल रहा होगा। बीच में कट करना, इन अ वे आई फील मैं बहुत सुपीरियर हूं। और दूसरी बात, दूसरे की बात को उतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को हम दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रिगार्ड टू अदर्स। हम कहते हैं आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई सीनियर्स और वॉट एवर। लेकिन हर कोई की बात को, क्योंकि उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है, और रिगार्ड देना। और फिर अगर कट करना भी है तो कैसे कट करना है, उसको मतलब बताना भी है कि ये रॉन्ग है। हमको बहुत एक अच्छी ट्रेनिंग देते हैं कि अगर बताना भी है ना किसी को कि आप वो रॉन्ग है, तो उसको अच्छी बातें उसकी बता के और उसके बाद बताओ कि अगर ये वाली क्वालिटीज है हो जाए तो। जैसे सपोज किसी में ये मतलब वो सहन करती है, काम बहुत परफेक्ट करती है, काम बहुत एक्यूरेट करती है, मीन्स व्हाट ऑल अदर क्वालिटीज ही हैज, एंड देन टेलिंग अबाउट 1-2 क्वालिटीज, एंड देन अदर द मेन मिस्टेक, कि अगर आप, एंड बोलने में वो कड़वी है, बाकी एडजस्ट करती है, और कोई भी काम आप बताओ तुरंत करती है, लेकिन दिस, so if I can just mention that quality and then pinpoint the mistake in a very positive manner, कि why not if, अगर आप देखो आप एडजस्ट कितना अच्छा करती हो, आप कोई भी काम जो बताते हो वो कितना अच्छा सा करते हो, why not if just add this कि बोलने में भी, और if आप बोलने में भी मीठा हो जाओ तो। so having this प्लस बोलने के मैनर्स, अगर कॉन्वर्सेशन के मैनर्स हमें आ जाए ये सारा,
तो आज रिलेशनशिप हमारा कैसा हो सकता है? व्हाट डू यू फील? Major reason of dispute in the relationship is what? We are not able to listen to each other, or we are not ready to even talk to each other nicely. ये होता है ना, बात करते ही आर्ग्यूमेंट हो जाता है, बात अभी शुरू ही नहीं हुई और आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है. दिस इज, तो इसलिए डिसिप्लिन में व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक and how to listen easier, and then comes what to think. तो कैसे कैसे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है. कभी कभी हम कुछ बात हो जाती है, अच्छा उसने मुझे बहुत स्ट्रांगली कहा भी, पर क्या सोचना है, एंड माई माइंड इज क्राइंग और मैं काम कर रही हूँ. इट्स लाइक अ बेबी इज क्राइंग. जैसे एक बेबी क्राई करता है तो आप क्या करते हो? इमीडिएटली क्राई होने देते हो या उसको पहले उठा लेते हो? फर्स्ट यू अटेंड टू द बेबी. हाउ मेनी ऑफ डू दिस कि फर्स्ट अटेंड टू द बेबी एंड देन डू एनीथिंग? नन ऑफ अस कुड बी सो क्रूएल कि अलाउ द बेबी टू क्राई. क्यों? बिकॉज उसका क्राई मुझे डिस्टर्ब करता है. तो सिमिलर अगर कोई कुछ मुझे किसी ने कुछ कह दिया और मेरा मन दुखी है और मेरा मन बोलता रहता है, तो क्या करना है मुझे? अटेंडिंग टू दिस बेबी. इफ इट्स लाइक क्यों बोला, कैसे करते हैं इन लोग, कुछ समझते नहीं है. सो द माइंड इज क्राइंग, माइंड डिमांड्स अटेंशन. नाउ व्हाट डू यू डू व्हेन बेबी इज क्राइंग? Yes, all the mothers are here. All of us know, even all the fathers and the mothers are here. Baby is crying. What do you do? All are equipped in this etiquette. सबको आता है ना इसको शांत रखना? किसने अलाउ किया कि नहीं अलाउ करने दो, रोने जितना रोने दो. उसको भी, उसके लिए भी प्रॉब्लम. जो रो रहा है उसकी भी एनर्जी जा रही है और मेरी एनर्जी ऐसा फादर पेरेंट जा रहा है, और जो सुनने वाला है उसको भी डिस्टर्ब हो रहा है. सिमिलरली मेरा मन इधर रो रहा है, क्या करना चाहिए उस समय? और हम क्या कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, इधर उस बॉस ने कुछ कह दिया, उस स्टेटमेंट से डिस्टर्ब है, और इधर कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? मेरी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, मेरा अटेंशन कम होता जा रहा है, कंसंट्रेशन में फर्क आता जा रहा है, और कभी कभी इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाती है whilst I am doing that work. क्यों? क्योंकि वो बैकलॉग वाला ही से रो रहा है. What I need to do? Yes, top priority is the child. So top priority is my, क्या कहेंगे? How many of you feel top priority is my mind? तो मेरे मन को मुझे शांत उस समय 1 मिनट लगता है. दिस इज कॉल्ड, 1 मिनट के लिए मैं शांत एकदम मेडिटेशन में कनेक्ट हो, या मन को एक पावरफुल थॉट दे. कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो, बस एक पावरफुल थॉट देना है, एंड इट विल बी साइलेंट. थोड़ा कंसोल करो. दिस इज कॉल्ड 1 minute in 1 hour, intermittently meditating. A beautiful and a very powerful discipline, and a successful discipline in a life. To be successful, this discipline, if I, क्योंकि बीच बीच में मैंने अपने आप को, इस रोते हुए माइंड को एकदम चुप कर दिया, एकदम चुपचाप लेके. Do we spend time going outside, taking the child, consoling him? 2 मिनट लगता है और वो चाइल्ड चुप हो जाता है. इसी तरह 2 मिनट लगेगा और ये माइंड चुप हो जाएगा. उससे क्या हो जाएगा? हमारे बाद में के सारे जो चीजें हैं वो पूरा एक्यूरेट एज पर आवर शेड्यूल टाइम टेबल चलता. नहीं तो एक जगह अभी से मुझे फील हुआ और मैं उस फीलिंग में रही, माई माइंड इज क्राइंग, आई एम डूइंग द वर्क, अटेंडिंग टू पीपल, टॉकिंग ऑन द फोन, पूरा IT कंप्यूटर चला रही हूँ, बट आई एम एक्चुअली
एफिशिएंसी कम करती जा रही। सो देयरफॉर what to think, when to think, and how to think, healing myself first and having full control of the words, thoughts and actions. तो क्या हो जाएगा? थॉट्स भी पावरफुल, बिकॉज इमीडिएटली फर्स्ट एड किट हम रखे। उसका फर्स्ट एड किट क्या है कि माइंड को बोलो कि नहीं, परमात्मा तुम्हारे साथ हो। जैसे उसने कुछ कह दिया, मुझे कुछ मैसेज आया, अरे ये चीज मुझे मिल नहीं रही है, मैं बहुत ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रही है, और अंदर अभी डर लग रहा है, अब दूसरा काम आ गया, एज इट इज इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, और अब सेकेंड वर्क तो पहले से वी आर बिजी, वी डोंट हैव टाइम, अब उसमें डर लग रहा है, हो जाएगा, क्या है, मुश्किल है, क्या है, लोग ठीक नहीं रखते, कितनी बार समझाया, पता नहीं क्या। नाउ दिस इज द माइंड क्राइम, जस्ट कंसोल द माइंड, बहुत अच्छे से मिल जाएगा, होगा ही। तो क्या हुआ, एक बार मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट टाइम के राजू थे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नागार्जुना फर्टिलाइजर्स, एंड उनका as I was, if you remember how he changed his lifestyle because of this Brahma Kumari's knowledge. 9 o'clock 9:30 को सो जाना, 3 o'clock को उठना, and doing the meditation till 5 o'clock. MD of a company, who's who in the list of the Hyderabad social network, who's who. तो इतना सब होकर भी डिसाइड कर दिया कि आई वॉन्ट टू डिसिप्लिन माई लाइफ वेरी पावरफुल। एंड देन एक बार उनकी कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, एंड इतने दिनों से वो मतलब इट वॉज लाइक दैट प्रॉब्लम वॉज अ बिग डिटरेंट टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, लॉस होता जा रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, कितनी मीटिंग्स हो गई। उन्होंने फिर बहनों को पूछा और बोला कि मेरा मन नहीं लगता है, 4 o'clock उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो क्या करूं? पर बहनों ने कहा नहीं, डू द मेडिटेशन, और उन्होंने मेडिटेशन किया, और फिर उस जिस दिन किया बहुत अच्छे से, और उसके बाद जब वो उठे तो प्रॉब्लम जैसे सॉल्यूशन जो क्लिक हुआ, वो ऐसा क्लिक हुआ as if it was like सामने ही पड़ा था। तो फिर बहनों को पूछा कि what happened, इतने दिन से मुझे मिला क्यों नहीं? और when that solution was applied to in the meeting, और उसके बाद the way it was, the company was growing to heights। तो उन्होंने कहा कि इतने दिनों से तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी उतना हुआ क्यों नहीं, और अभी कैसे हुआ? तो यही कहा, बहनों ने कहा कि देखो, जब आपका माइंड साइलेंट होता है ना, तो जो चीज जो डिस्टर्ब होती है, जो सामने होती है ना, वो दिखाई नहीं देती, और जब साइलेंट होता है तो आपको पता चलता। सो देयरफॉर व्हेन वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू दैट मेडिटेशन, वी आर एक्चुअली मेकिंग आवरसेल्फ sharp, we are sharpening our intellect and making ourselves stronger and preparing ourselves for the best efforts in the whole day। क्या करना है मुझे उसके लिए। सो देयरफॉर क्या खाना है, तो अगर इस तरह से हमारा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल हुआ, फुल कंट्रोल ऑफ वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शंस, तो क्या हो जाएगा, जहां वर्ड्स के ऊपर भी, थॉट्स के ऊपर भी, एक्शंस के ऊपर भी मेरा कंप्लीट डिसिप्लिन, दिस इज कॉल्ड राइट ड्राइवर। जस्ट इमेजिन आज का ड्राइवर हमारा कैसा है। आप एक ड्राइवर है जिसका न क्लच के ऊपर कंट्रोल है, न स्टीयरिंग पे ऊपर कंट्रोल है, न ब्रेक पे कंट्रोल है, और वो गाड़ी चला रहा है। क्या हो रहा है? ऐसे का डर कंप्लीटली। तो आज हमारा माइंड ऐसा हो गया है। सो दिस सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, एंड व्हाट टू ईट, सबके ऊपर कंट्रोल है। तो दिस, अब किसी ने कहा कि भाई थोड़ा सा अल्कोहल भी मिक्स हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नो मीन्स, डेफिनेशन ऑफ नो, नो मीन्स नो।
देयर इज नथिंग कॉल्ड थोड़ा थोड़ा करें। थोड़ा थोड़ा करने से क्या हो जाएगा, मैंने अगर थोड़ा की और पहले बहुत की आदत है, तो थोड़ा थोड़ा करते करते वो बड़ा हो जाता है और फिर वो नेचुरल हो जाता है। इसलिए जो लेट होते हैं ना, 5 मिनट 2 मिनट लेट होते हैं, फिर थोड़े दिन वो लेट होते जाएंगे, उनको आदत पड़ती है, फिर अगली बार वो लेट 2-3 मिनट लेट होते हैं तो उनको फील नहीं होता है, फिर वो 1 मिनट लेट होते हैं और धीरे धीरे उनका लेट का डेफिनेशन क्या हो जाता है। तो हम 10 बजे ज्वाइन करते हैं तो 10:05 तक क्यों हो जाता है, क्योंकि अब हैबिट हो जाती है। सो देयरफॉर दिस इज व्हाट वी हैव टू। इसलिए कंप्लीट कंट्रोल। एक बार लास्ट स्टोरी बताती हूँ। वन सिस्टर, शी हैड gone to the psychiatrist and her sister was just sitting। तो उसने कहा कि साइकेट्रिस्ट ने कहा कि देखो अभी आपका बॉर्डर लाइन पे है डिप्रेशन, और अगर आप ये अल्कोहल लेंगे तो आप, एंड शी वाज वेरी मच हाई इन हर प्रोफेशन, तो आपको ये अल्कोहल लेंगे तो ये एंटी डिप्रेसेंट है, अल्कोहल इज अ बिग डिप्रेसेंट, तो ये आपको और डाउन कर देगा, यू विल, एक बॉर्डर लाइन में है तो आपको डिप्रेशन की गोलियां शुरू करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि, तो फिर हम बैठे थे, मतलब हमारी सिस्टर, तो वो कह रही कि अच्छा देखो आप कितने लकी हो, एकदम टाइम पे आ गए डॉक्टर के पास, अभी तो बॉर्डर लाइन पे है तो अब तो आपकी पूरा कंट्रोल है। तो फिर वो हमारी तरफ देखने लगी और कहती क्या कभी नहीं लेना है। हमने कहा हाँ, सुन रहे हैं ना कि डॉक्टर ने कहा कि अभी बॉर्डर लाइन पे है। बोला पूरे जीवन में कभी नहीं लेना है, नेचुरल है कि हालत ऐसी हो गई है। तो बोला बहन जी आपको पता नहीं, आई थिंक ऑफ इट। तो हमने उनको कहा कि आपको थिंक होने की भी मार्जिन है बॉर्डर लाइन पे। सो जस्ट इमेजिन व्हेन वी आर गिविंग अवर कंट्रोल, वी आर बिकमिंग सो मच सो losing our control on ourselves, we are becoming so much so dependent, and finally we are only the victim of our choice, whatever choices we have done of eating drinking, uska victim हम। So क्या करना है अभी, therefore complete control over our thought, words and action। And last is do not sleep with the emotional wound। words prohibited is डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, डिसिप्लिन पर्सन विल नेवर से दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज इम्पॉसिबल। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कृष्णा अय्यर होते थे, इन एट 9 o'clock he will just leave whatever function he is there, even in our Mount Abu program, or he will go out। therefore not, जो करना है वो करना है, no words of impossible। सो इम्पॉसिबल नहीं करना पॉसिबल है आप सबके लिए। सो वी आर, therefore this would be the homework this time। sleep on time, wake up early morning, start the day with positive emotional healthy diet, 30 minutes which we had done last time, and not saying difficult, taking care of emotionally healthy food। करेंगे सभी होमवर्क? यस, हैंड्स रेस करें, वंडरफुल, दिस इज फॉर माय बेनिफिट। और जब आप डिसिप्लिन होंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके बच्चे ऑटोमेटिक डिसिप्लिन। ओके, ओम शांति, थैंक्स अ लॉट। So today we are up, so we won't do any meditation today। Time is up। Okay. Okay, thank you so much, Didi, for conducting this session, and a very good day to all. And let's bring out the best practices from the learning shared by Didi today. And thank you, Jindal Sauce employee, to join, and welcome again to this forum. And everybody, let's meet next week for the new learnings, and let's share some of the experiences we have gained so far. Thank you so much. Good day. Om Shanti.